चलिए डन, परफेक्ट। बैठो बेटा। Assalamu alaikum everyone. Before I start dwell on the topic, I'll give a brief introduction of mine so that for this progression of ours, I'll be teaching you reasoning. My name is Mohammad Shahkar. I have been associated with this institution since the beginning of this institution. When the institution came into existence, I have been one of the faculty members. So way back in 2020 we started. I used to teach accounts that time. Post आए थे accounts assistant के. I am a faculty in Islamia College of Science and Commerce. I teach management students there. तो उसके बाद reasoning was always my forte. I have around teaching experience of around, this is my 12th year of teaching. तो I primarily teach commerce. मेरा बहुत, जैसे ये बच्ची है, इसने भी मेरे पास ही 11th-12th पढ़ा है उसके बाद भी, तो she has been my student. ऐसी बहुत सारे बच्चे अभी भी पढ़ते हैं मेरे पास. I have my own private tuitions wherein I primarily teach commerce 11th-12th और reasoning for banking examinations, for CMAT, for UGAT, for CUET. तो उससे ये reasoning का बढ़ गया था. तो फिर यहाँ मैं एसोसिएटेड था इनके. फिर 2021 से I taught reasoning continuously. तो same way I'll be teaching you people, but my modus operandi of teaching is different. I primarily believe in doing questions. मतलब I'll be sharing the concept with you. Come please gentlemen, come. I'll be sharing the nuances of how to do this in an efficient manner, in an effective manner. Approach building पे मैं काम करूँगा. And once we build the approach, then we will work on questions. So I keep on giving questions. You can bring questions. So it's an open forum. यहाँ कोई आपको परेशानी नहीं होगी कि सर को मत गुस्सा आएगा, सवाल आएंगे. नहीं जी, आपका हक है, आपने पैसा यहाँ भरा है. जो क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब करेगा घर पे, bring it, show it to me, we'll do it collectively here. तो यही रहा है रुझान. मैं फिर वो क्वेश्चंस जमा भी रखता हूँ इसमें. आई कीप दोज क्वेश्चंस विद मी, जो बच्चे लाते हैं पेज पे, सर हमें ये दिखाइए, इस टॉपिक के, इस टॉपिक के, इस टॉपिक के. अब बहुत सारे बच्चे आप में से रीजनिंग के साथ पहली बार जां बजां हो जाएंगे. कभी सुना ही नहीं होगा आपने ये रीजनिंग क्या होता है. एटलीस्ट पॉलिटी पता होता है, एटलीस्ट यार थोड़ा सा स्विक्स के बारे में पढ़ना है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, जियोग्राफी का पता होता है, मैथ्स का पता होता है. बट रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ बच्चा पहली बार एक्लिटमाइज हो जाता है. इससे पहले कोई आइडिया नहीं होता है रीजनिंग का. बट अगेन यू हैव टू बी ओपन टू लर्निंग इन रीजनिंग. देयर इज नो सेट प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ रीजनिंग क्वेश्चन. You can devise your own mechanism once your brain juices are in turbulence. The moment I'll try to delve into your brains and try to teach you the concept, teach you the approach so that you solve the questions in the optimum manner. But again, learning the approach won't help. I'm again saying, if you have to qualify this examination, if you have to learn the nitty-gritties of the reasoning, you have to work hard. Questions 200, 150 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे करने हैं. महज एक बार क्वेश्चन करोगे, आ जाइए बेटा बैठिए, 1-2 क्वेश्चन करोगे, 3-4 उससे नहीं होगा. यूज गूगल, टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट. देयर इज प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल. ये बुक है मेरे पास, बेहतरीन बुक है. अगर ये कोई लाएगा, RS अग्रवाल की, एरिहांत की भी एक अच्छी किताब आती है रीजनिंग पे. क्वेश्चंस करो. तो आपका जो सिलेबस है हमारा NT का, गवर्नमेंट ने एक बोनंजा ऑफर दिया है. मेहनत कर लो और कर लो क्वालिफाई, और लाइफ बन जाएगी. अब यह है कि उससे पूछो जो अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड होना कितना बेहतरीन चीज है.
खासकर इस सोसाइटी में जहां पे आपका इज्जत देखा जाता है, आप कितना धन कमाते हैं, आप किस पोस्ट पे है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी. ग्रैब इट विद बोथ द हैंड्स. वर्क हार्ड. Forget social media. Forget relationships. Forget your partners. Just be in the room. Come here. Understand the concepts. Go back, work hard. Then only you can qualify. I won't show you the greener pastures wherein I can tell you, yes, you come here and you will qualify. Yes, students have qualified. Our students have qualified. But they dedicated, they exhumed themselves into. वो शम्मा जैसे नहीं जलता है, वैसे आपको भी जलना है ताकि आपको अपने आप को रोशन करना है. तो इसमें आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है, जो आपका एनटी का सिलेबस है, थोड़ा मैं आपको इसके साथ एक्लेटमाइज करूं. आपका नंबर सीरीज है, उसमें वो मैं आपको दिखाऊंगा. एक एक टॉपिक पढ़वाऊंगा मैं आपको, और टॉपिक में जो सब टॉपिक्स है वो भी पढ़ेंगे. लेटर सीरीज, जैसे नंबर सीरीज होती है वैसे लेटर सीरीज होती है. अल्फाबेट्स का जैसे आपको लिखा होगा ए, नेक्स्ट इज सी, नेक्स्ट इज ई, नेक्स्ट इज एच. बोलिए इसी सीरीज के हिसाब से नेक्स्ट क्या होगा. तो आई विल शो यू ऑल द ट्रिक्स, ऑल द अप्रोच बिल्डिंग पे मैं काम करूंगा. आपका कोडिंग डिकोडिंग है, वेरी सिमिलर टू दिस, वेर एन एप्पल विल बी कोडेड एज, एप्पल का कोड कुछ दिया होगा, आपको बोलना है जी मैंगो का कोड इसी फिलॉसफी के हिसाब से क्या होगा. सो इस पे भी एक अलग तरीका है मेरा पढ़ाने का. ऐसे नहीं कि क्वेश्चन उठाया, हमारा तरीका क्या रहेगा पढ़ाने का. कोडिंग डिकोडिंग में 15 अप्रोचेस है, मैं आपको वो 15 अप्रोच पहले ही याद कराऊंगा. फिर जब एग्जाम में सवाल आएगा आपको याद कहे सर ने तो हमें दिखाए हैं 15 अप्रोच. 15 अप्रोच में से कोई तो अप्रोच लग जाएगा ना. वरना क्या होते हैं, टीचर करते हैं, गलत नहीं करते, वो बच्चों को सवाल करवाते हैं, मगर फिर एग्जाम में सवाल आता है, बच्चा परेशान हो जाता है. सवाल मा करो और एक सवाल तो वहां से बात नहीं करेगा, बच्चे परेशान हो जाते हैं, भाई ये कौन सा ये है. तो हम अप्रोच पे काम करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है. तो आपका इसमें इन्होंने रखा है कोडिंग डिकोडिंग का, वो भी हम कर लेंगे. आपका डायरेक्शन सेंस है, उसमें आपको मैं हर सवाल कराऊंगा. एक तो बेसिक डायरेक्शंस, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, शैडोज का. एवरी डैम क्वेश्चन विल डू, एवरी डैम कॉन्सेप्ट विल अंडरस्टैंड. जो भी क्वेश्चंस आते हैं कहीं से भी लाओ, बैंकिंग से लाओ, उससे लाओ, अभी पूरा अपने आप को इसी में एनग्रॉस करो. तो आपका डायरेक्शन सेंस बड़ा आसान सा टॉपिक है, वो कर लेंगे. ब्लड रिलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, उसके तीनों अप्रोच मैं आपको पढ़ाऊंगा. यहाँ ब्लड रिलेशन लिखा है मगर वी हैव टू स्टडी ऑल द 3. उसका एक आता है पॉइंटिंग वाला आता है, वो हम कर लेंगे, जिसमें राम पॉइंटिंग टुवर्ड्स माधव एंड टोल्ड हिम ही इज माय मदर सन्स ब्रदर. तो दैट इज व्हाट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट. इसमें दूसरा आता है पजल बेस्ड, जिसमें पजल दी होती है, 10 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है. फलाना फलाने का फलाना लगता है, वो इसका ये लगता है, ये उसका वो लगता है. बताओ जी बीसी का क्या लगता है, बताओ जी बीसी का क्या लगता है. तो दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दैट. वो हम अंडरस्टैंड करेंगे. देन आपका इसमें थर्ड आता है, आजकल वो पूछते हैं, दैट इज कोडेड ब्लड रिलेशंस. दैट इज कोडेड ब्लड रिलेशंस. आपको आइए बेटा, आपको ऐसे सवाल होगा A क्रॉस B प्लस C डॉलर F, मगर इन डॉलर वॉलर का पहली मतलब दिया होगा, तो बोलो जी ओ इसका क्या लगता है. कोडेड ब्लड रिलेशन उसको बोलते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. स्टेटमेंट एंड वेरी यूनिक वे, ये हम IAS को भी जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, CSAT उनको भी मैं ये पढ़ाता हूँ, उसी अप्रोच से आपको भी पढ़ाऊंगा ये, ताकि आप इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन आपको इसमें आए वो आप कर पाओगे. देन यू हैव लॉजिकल रीजनिंग, उसमें आपका लॉजिकल बिल्डिंग और मेंटल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स है. अच्छा खासा सिलेबस रखा गया है, वाइड सिलेबस है, वो हम डिस्कस करेंगे. और फिर फोकस आपका इसी पे रहना चाहिए, एनटी का, नायब तहसीलदार. अब कुछ बच्चे हमारे हैं जो हमने सिलेबस खुद बनाया है मैंने, वो है रिलेटिंग टू द जनरल JK SSB एंड SSC एंड CGL. वो भी यही है, बस वो थोड़े से एक्सप्रेस करके लिखे गए हैं, बाकी सेम वो यही है. क्लियर है.
तो मगर मेरा फोकस अभी पूरा होगा एंटी, क्योंकि दिस इज व्हाट यू आर हेयर फॉर एंड दिस इज व्हाट यू शुड बी हेयर फॉर. नाउ थोड़ा सा अब आपके साथ हम, ताकि आपको पढ़ाने का अंदाज हमारा लगे कि शैल वी कंटिन्यू विद दिस टीचर और नॉट. वो ज़रूरी है आप इनको जब आपसे फीडबैक लेंगे, समझ आया नहीं आया, आप बोल सकते हैं कि क्या हम पढ़ेंगे इसी के पास कि नहीं. तो थोड़ा सा आपको पढ़ाएंगे 10-15 मिनट, ताकि आपको भी मज़ा आए. रीजनिंग है क्या, सर का तरीका क्या होगा पढ़ाने का. क्लियर है बेटा. नाउ मैं नंबर सीरीज पढ़ाऊंगा थोड़ा सा आपको. आई विल टीच यू नंबर सीरीज. अच्छा इरेजर. आई विल टीच यू नंबर सीरीज. आप देखोगे सर का अप्रोच मेरा कैसे होगा. और एक चीज मैं आपको बोलूं, मैं भूल गया वो बोलना. आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट नॉट जस्ट बिकॉज कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मैं उसलिए ये बोल रहा हूं नहीं. आई कम हेयर बिकॉज आई हैव एन इमोशनल कनेक्ट विद द इंस्टीट्यूशन. अदरवाइज आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम. मगर उस लिमिटेड टाइम में भी, उस बिजी स्केड्यूल में भी मैंने यह टाइम निकाला कि आई हैव टू कम हेयर. आई ऑलवेज एंश्योर दैट आई कम हेयर बिकॉज दिस इंस्टीट्यूशन हैज personally given me a lot, be it in terms, yes please gentlemen come, be it in terms of money, be it in terms of growth, be it in terms of intellectual growth, be it in terms of professional growth, be it in terms of financial growth. Otherwise I work in a college, I have my own salary, I have my own tuitions, I generate a lot of wealth. But the main aim of coming to this institution, gentlemen, is because I always believed that this institution is doing justice with the students. Every now and then, always. मगर हमारा फोकस, आई स्वेयर 2020 से हम इस फील्ड में हैं, हमारा फोकस हमेशा रहे कि बच्चा पिवोटल है हमारे लिए. Every teacher is highly dedicated. You will witness it yourself once the learning will start. आपके मोमिन साहब है, फहद साहब है, आपका यूनिस मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट है वो. वरना यहाँ बहुत सारे ट्यूशन्स में आप क्या देखोगे जी, एक टीचर 4 पेपर पढ़ाता है, 5 पेपर पढ़ाता है, जस्ट बिकॉज दे हैव टू सेव द मनी. वी हैव एक्सपर्ट्स फॉर ईच एंड एवरी पेपर. हमारा कंप्यूटर अगर है उसके लिए जनाब अलग एक एक्सपर्ट टीचर है. हिस्ट्री के लिए यू हैव अ डिफरेंट टीचर, पॉलिटी के लिए डिफरेंट, साइंस एंड टेक के लिए डिफरेंट. जो भी आपके डोमेन्स इसमें है, वी हैव अ डेडिकेटेड फैकल्टी. हमारे एक तहलील साहब है, हु इज़ वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स, ही टीचर्स इन दृष्टि. सो बाकी भी जो है दे ऑल आर या तो बेचारे IAS में. हमारा एक रिसेंटली एक टीचर ही पास्ड अवे, ही वाज अ फैकल्टी मेंबर हेयर फॉर 4 years एंड अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे. यस, आमिर अमीन साहब, वो DSP बन गए थे. एग्जैक्टली ही क्वालिफाइड द KS एग्जामिनेशन. एक बार गिरे इंटरव्यू में, दूसरी बार क्वालिफाई हुए. एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, हमारे साथ ही होते थे. And it was a shock to all of us. Such is the quality we have here. ऐसी बहुत सारे मोमिन, और एक मोमिन साहब है, he again appeared in the KS interview but unfortunately फहद साहब है, he is IAS drop out इंटरव्यू में गिरे, वो KS के इंटरव्यू में गिरे. So you have a quality here. बस यही है कि आपको एक क्वालिटी लेनी है और घर पे बहुत हार्ड वर्क करना है. महज यहाँ आना, आइए बेटा, वो वैसा नहीं करना है जिसको वो अल्लामा इकबाल बोलते हैं, नक्शा है सबना तमाम खूनी जिगर के बगैर, नगमा है सौदाई खाम खूनी जिगर के बगैर. जस्ट कमिंग हेयर, लर्निंग इट एंड गोइंग होम एंड क्लोजिंग द बुक्स. नो, यू हैव टू वर्क हार्ड. यू हैव टू मिक्स ब्लड एंड स्वेट फॉर दीज 2 months 3 months, जितना टाइम है आपके पास. जस्ट गिव इट द बेस्ट ट्राई ऑफ योर लाइफ. फिर न निकलना वो अल्लाह तक है, मगर पहले अपनी कोशिश करना वो आप तक है. सो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. तो shall I continue? चलिए, अब बिट आई विल शो यू. तो बाकी ये कंसिडर नहीं हो जाएगा एज टीचिंग, मतलब ये मैं वापस रिपीट करूंगा इंशाल्लाह. मैं कल यही टॉपिक उठाने वाला हूं, पहला नंबर सीरीज ही हम इसी के हिसाब से चलेंगे. ठीक है बेटा, जो इसमें है उन्हीं के हिसाब से. और या कभी आप बोलोगे सर आज ये वाला पढ़ा दीजिए, इसमें मन है. और क्वेश्चंस मेन है, क्वेश्चंस मतलब इतने क्वेश्चंस आप करने चाहिए. जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको पता होना चाहिए इसने कहां से क्वेश्चन लिया है. क्वेश्चन बात करना चाहिए आपके साथ, आपको पता लगना चाहिए. दैट्स ओनली पॉसिबल व्हेन यू डू प्रैक्टिस. उसके बगैर वो पॉसिबल नहीं है. बस मेहनत बहुत है
रोड आगे वाला है, टफ है, मेहनत है, बस मेहनत करोगे क्वालिफाई करोगे। ध्यान दीजिएगा, नंबर सीरीज होता क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स वेर इन यू हैव टू से व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। से आपका नॉर्मल सा स्टार्ट करूंगा मैं, हमें वो उस बोर्ड की आदत है, अब ये वाले बोर्ड हमने लगवा दिए यहां पे 2 4 6 8 और आपको बोलना है नेक्स्ट नंबर। ये आप कोई भी फर्स्ट के बच्चे को लाओ वो भी बोल देगा 10, है ना? क्यों? आपने कैसे बोला 10? बिकॉज यू लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, आपको लगा यहां का डिफरेंस +2 है, यहां का डिफरेंस +2 है, यहां का डिफरेंस +2 है और आगे का भी +2 होगा, तो आंसर आपका 10 होगा। मगर एग्जाम एनटी वाला एग्जाम है, इतना आसान तो नहीं आ जाएगा ना वहां पे। तो हमारी आदत है, आई ऑलवेज टेल इट टू माई कलीग्स एज वेल, that keep yourself updated. Teacher, if you become a teacher tomorrow, you have to keep yourself updated. I also do one thing for the benefit of the students. I always look at the questions of the banking examination, because banking examinations for reasoning are considered one of the toughest examination. मैं वहाँ से question ले लेके आता हूँ, तो आपको जो questions मैं दिखाऊंगा वो novel होंगे, नए होंगे। So वो आसान वाले questions के साथ तो आप you will play that. अथौच समीना मैम, option wherein it clearly rubs the board. Please show me that. Yes, thank you. Okay, now इतना आसान तो वहां नहीं आएगा। तो जब भी आपको नंबर सीरीज होगी, 3 किस्मों की आपको नंबर सीरीज होंगी। आपको सवाल देख के ही पहचानना है भाई कौन से किस्म का ये है। इज इट किस्म 1, किस्म 2 और किस्म 3? और भी होते हैं फिर वो, मगर आप आगे आगे सीखते। मेन यही है। When I say number series, you either have increasing number series. What do you mean by increasing? Wherein the arrangement of the numbers is increasing. रुझान बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है. You have decreasing number series. You have decreasing number series, and then, ladies and gentlemen, you have mixed number series. Mixed number series. कोई चीज बढ़ता क्यों है मैथमेटिकली? मैथमेटिकली बिना कोई चीज बढ़ता क्यों है मैथमेटिकली? क्या हुआ होता है उसको? कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ होता है? एडिशन या मल्टीप्लिकेशन? बस, ब्रिलियंट। जब भी आपको इंक्रीजिंग नंबर सीरीज होगी या इसमें एडिशन हुआ होगा, मगर वो सिखाऊंगा मैं आपको कैसे चेक करते हैं एडिशन हुआ है कि सब्ट्रैक्शन कैसे बेजार, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? एडिशन हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन हुआ है। थोड़ा हम लगते हैं एग्रेसिव, बट है नहीं एग्रेसिव। हम बस यही होता है क्लास में, डिसिप्लिन रहना चाहिए, बिकॉज यही पैसा हम घर ले जाते हैं, अपने आयाल को खिलाते हैं। हलाली होना चाहिए, हराम का पैसा नहीं होना चाहिए, फिर वो नस्लें बड़ी हराम पैदा होती है। तो उसका बेहतर है आप भी ख्याल रखें उसका कि डिसिप्लिन, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, डिसिप्लिन, और जो मैं पढ़ा हूँ वो घर पे मेहनत करना है, दैट्स इट। बस इसी को मैं थोड़ा सा, मैं बाकी चीज़ें ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। इस चीज़ को बड़ा डरता हूँ मैं कि एवरीथिंग शुड बी कवर्ड विद इन द क्लास। हर कोई कॉन्सेप्ट पढ़े हम, हर कोई किसी चीज़ को ना पशपट शीन सुन के आई ट्राई माई लेवल बेस्ट इन दैट। तो नंबर सीरीज ब्रिलियंटली बेटी ने बोला, या तो एडिशन हुआ होगा मैडम जी, या तो मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। अब मगर लेट रिस्पॉन्स है, ख्याल हमें बेटे इसी का रखना है। जब भी आप इंक्रीजिंग वाली नंबर सीरीज देखोगे, पहले आप देखोगे एडिशन हुआ है कि, वो मैं आपको सिखाऊंगा क्या देखना है, कैसे देखना है। हमेशा पहले शक करना है शायद मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ये मेरी बात याद रखना। यो कर सॉरी रिपीट वन वर्ड वन पेट में जस्ट टॉक पेट सुना आखिर क्या दलील अच्छा ताई बासिया मिशा तगा परना उनकिन
तमी खतर ना बाकी क्या वह गई मे 20 वरी ना 10 वरी 12 वरियन वोत मे फीडबैक दिवान गचान आसन दिन कह तो एडिशन तो मल्टीप्लिकेशन गोड शक करूँ एक भाई इसमें शायद मल्टीप्लिकेशन हुआ है, पहला शक वही करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कल जब फॉर्मली क्लास शुरू होगी कैसे देखना है मल्टीप्लिकेशन मत हुआ है। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है तो जरूर क्या हुआ होगा, एडिशन, एडिशन हुआ होगा, तो एडिशन हुआ होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड, वंडरफुल। उसके बाद जनाबे मन अगर डिक्रीजिंग सीरीज है, जब कोई चीज डिक्रीज होता है क्यों मैथमेटिकली डिक्रीज हुआ है, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, अरे बढ़िया, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। इधर भी पहला शक किस पे करना है, डिवीजन पे। और मैं सिखाऊंगा आपको कैसे देखना है। अगर डिवीजन नहीं हुआ होगा तो 100% क्या है ये, सब्ट्रैक्शन। और अगर मिक्स्ड होगा उसमें कोई भी चीज पॉसिबल है, कभी बढ़ना कभी घटना, उसमें एडिशन भी हुआ होता है, सब्ट्रैक्शन भी हुआ होता है। सो दिस वी विल स्टार्ट formally from tomorrow. We will do it. I will do questions. I'll be giving you questions. बस यही है एक चीज जो आपको मैं लास्ट पे भी बोलूं। पहली चीज आपको मैं एक मुबारक दूं कि आपने डिसाइड किया है दैट यस वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये बेहतरीन जर्नी होगी आपके लिए। वो दीगर सवाल है फिर किसका निकले किसका ना निकले, उसमें तो बड़े सारे फोर्सेस काम करते हैं। वो जब तक आप में मैडनेस नहीं होगी, जनून नहीं है, मैं जब आता हूं मेरे पढ़ाने में जनून होता है, पागलपन होता है, बिकॉज आई लव दिस प्रोफेशन। मैं थकता नहीं हूं, आई गिव 12 क्लासेस अ डे। बस यही है मेरे में एक जनून, एक पागलपन होता है, पढ़ाने का पागलपन। Because I love this profession, it has given me a lot. Same way you have to work hard. Just mere coming here, mugging up the things, but then you have to go home. और देखो जी, आप एक important बात आपको मैं लास्ट पे बोलूंगा। Majority of you will be from different districts other than श्रीनगर, है ना? मेजॉरिटी, क्योंकि हमारा जो क्लाइंटेल ज्यादा होता है वो वहीं से होता है। Because I have taught, क्वालिफाई भी उन्होंने ही किया है। श्रीनगर कल मुबारक अहमद तो ना खेम कथा सेल्समैन या वेल्समैन या बिहुन पेंजन वेंजन पे अच्छा इतकुन लगमित। एटलीस्ट मुबारक है, यहाँ मैं देख रहा हूँ a bit of percentage, अदरवाइज क्वालिफाई भी हमें बच्चों ने ही किया है जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से। मगर बाकी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को मैं एक बात बोलूँ, आपको इनसे ज़्यादा कॉस्ट है, आपको इमोशनल कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। इनको ये है कि यहाँ फी देना है और थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन है और घर जाना है। आप लोगों ने घर छोड़े हैं, घर का आराम छोड़ा है, घर का करार छोड़ा है, उसके बाद हॉस्टल में बैठे हो, होम स्टेज में बैठे हो, कहीं रेंटेड अकोमोडेशन में बैठे हो जो उस मयार का नहीं है जैसे आपके घर है, उस कंफर्ट लेवल का नहीं है, खुद पकाना है, बासी खाना कभी खाना है। तो आप में ज़्यादा जुनून होना चाहिए, ज़्यादा पागलपन होना चाहिए। देखो ये भाई, मेरा तो 15,000 खाली, 15,000 तो आज मसला नहीं है, 15,000 खाली कॉस्ट नहीं है, मेरा कॉस्ट तो कहीं ज़्यादा इनसे बढ़कर है। तो आपको ये चीज़ सोने नहीं देनी चाहिए। हाँ ठीक है, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है, यू हैव टू ईट हेल्दी फूड, यू हैव टू हैव अ बिलीफ इन गॉड, यस ही इज़ गोइंग टू हेल्प मी इन दिस परस्यूट ऑफ माइन। वो तो ज़रूरी है, जब तक आप में वो नहीं होगा फिर क्या फ़ायदा। ना उम्मीदी तो अच्छी चीज़ नहीं है, बस उम्मीद रखनी है, बस खाली उम्मीद भी नहीं रखनी है। देन यू हैव टू बैक दैट अप विद योर, कहता है ना वो उस मूवी में, असल में वो एल्केमिस्ट का थॉट है, वो बुक एक लिखी थी पॉलो कोहलो ने, उसमें वो कहता है कि पता नहीं हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दैट बुक, एल्केमिस्ट। पॉलो कोहलो इज़ अ राइटर, ब्राज़ीलियन राइटर, तो ही है साउथ अमेरिकन है वो, तो ही हैज़ रिटन दैट बुक। तो उसमें वो शेफर्ड एक के बारे में है। फिर शाहरुख खान की एक मूवी आई थी ओम शांति ओम, तो उसमें वो एक जगह कहता है अगर तुम लोग किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारा कायनात उसको तुम्हारे साथ मिलाने की साजिश में रहता है। इट्स फैक्ट। व्हेन यू परस्यू समथिंग, व्हेन यू डिजायर फॉर समथिंग,
when you want something with lot of determination, then every being in the universe conspires to make you meet that being. तो वो है पॉसिबल, उस चीज़ पे भरोसा रखिए, बट देन वर्क हार्ड. इसमें एक ही मेरा मॉड्यूल नहीं है कि मेरे मॉड्यूल में आप एक्सेलेंट करोगे. हर चीज़ में एंटी देखो, निकल रहे हो कहीं से कुछ देखो, मुझे ये एंटी में हेल्प ना करे. बस इन कितने महीने हैं आपको यहाँ, क्या बोला गया है? 4.5 महीने. ये 4.5 महीने ये उसी ख्वाब में रहो. उसके बाद भी जब तक इसका एग्जाम ना हो जाए, कंटिन्यूसली पेपर्स, चैट जीपीटी का हेल्प, चैट जीपीटी को बोलो गिव मी 100 ऑब्जेक्टिव्स ऑन दिस, करते जाओ सॉल्व. आजकल यू हैव फिंगर टिप्स पे नॉलेज, पिछले 10-12 साल के पेपर लाओ, करते जाओ सॉल्व. एक एक क्वेश्चन यार. अच्छा 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन देखो, ये क्या लेक्स है, जरा इन लेक के बारे में भी मैं पढ़ूंगा. ये पढ़ने का तरीका होता है. दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी फॉर दिस. So with this, I say goodbye to all of you. It will be amazing to teach you from tomorrow. Thank you so much.